Hello dear friends, how are you? I am Satyanarayan Prajapat, 2019 batch IPS, and today we are going to start a new series, that is Geography of India, because you people have demanded that Geography of India must also be covered, as it is asked in almost all the exams, whether it is the UPSC civil service exam or the RPSC exam or whatever different exams like SSC. Geography is one of the main ingredient of all the papers. So we will start with the NCERT textbooks. So as I told in the book list video that the syllabus of geography can be covered mainly relying on the NCERT textbooks, because they are written comprehensively and they are written very precisely as well. So in this series we'll first be starting with the class 9th NCERT, that is Contemporary India. So the name of the textbook is Contemporary India. If you want the PDF of the book, you can please mail me or like text me. I'll send you that book. Otherwise it is available on the internet, so that is not a problem. And I hope you must also have the hard copy of the book. So we will be starting with the chapter 1, that is India size and location. It's a very small chapter. There is nothing much to be covered in this chapter, but yes, there are very important aspects which we have to remember, and I will try to explain those using the maps which are given in the book only. I have not taken any of the map outside the book, so we will try to locate as many things as possible using the maps given in the books only. So the first and the foremost thing, जो India, it's a like big country geographically speaking, काफ़ी बड़ा लैंड मास है इसका, and जो इसका expansion है, so the latitudes are given here, latitudes as well as the longitudes. So I hope that you people know what are the latitudes and what are the longitudes. So suppose if this is the globe, so the standing line or the vertical lines, those are called the longitudes, whereas the horizontal lines or the lines which are like from north to south, they are dividing it into the equal parts, so those are the latitudes. And the line which is passing through 0 degree latitude is known as equator, that you know. So the India's expansion is like India is lying completely in the northern hemisphere. India जो है वो completely northern hemisphere में lie करता है. And if we see जो India का जो mainland है, this is 8 degree line. So almost जो है इसका जो southern expansion जो है वो है 8 degree 4 minute north तक, and the expansion is up to 37 degree and 6 minute. So I do not think कि आप लोगों को exactly ये coordinates याद रखने पड़ेंगे. There is no need to remember exactly. And yes, here you may get confused that like ये जो 8 degree है वो तो इंडिया को क्रॉस कर रहा है. Actually the lines are drawn like this because they are circular lines. So this is the 2D map. Otherwise in the globe, if you see, so the 8 degree latitude will be passing like this. So there is no need to worry, this is not passing through India, this is touching the India. Okay, 8 degree 4 minute. And the longitudes, like from the west to east expansion, if we see, अगर इस मैप में देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड्स दे आर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री ईस्ट है, और यहाँ पर जब आते हैं तो वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री ईस्ट हो जाता है. सो जो राजस्थान का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज पासिस थ्रू ऑलमोस्ट 68 डिग्री 7 मिनट. सो यू कैन रिमेंबर अराउंड 68 डिग्री. एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज 97 डिग्री 25 minutes. So Arunachal Pradesh जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज अराउंड 97 डिग्री. सो what I was telling you is that आपको exactly याद रखने की जरूरत नहीं है कि 8 है कि 9 है या फिर 36 है कि 37 है. If we see the difference of the longitudes and the latitudes, so we see that it is almost 29 degree in both the cases, right? So हम ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जब ऑप्शन दिए हुए रहेंगे हमें, तो उसमें हम ये वाला, even if the options are given, so we can find out कि कौन से longitudes and latitudes के बीच में जो difference है, that is 29 degree, और उसके हिसाब से we can reach up to the correct answer. Okay, so this is the first thing, which is the coordinates in which the India is located. Okay, then next thing is the most important aspect is Tropic of Cancer, यानी कि कर्क रेखा. तो जो कर्क रेखा है वो कंट्री को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड करती है. दिस इज
the Tropic of Cancer or the line of Cancer, and as we know, this is 23.5 degree. So the significance of this line is that generally we assume that sun is located at the equator, okay, but because earth is inclined on its axis, जो अर्थ का जो एक्सिस है, this is like this 23.5 degree. So this sun keeps on moving from 0 to 23.5 in the north and 0 to 23.5 in the south. तो उस तरीके से जो मैक्सिमम जहां तक जिस ट्रॉपिक तक सन रेज जो है वो कभी न कभी साल में पैरेलल गिरती है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दिस कम्स आउट टू बी द 23.5 डिग्री लाइन. तो दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट्स एन इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन खींची हुई नहीं है. एंड इट पासिस थ्रू मेनली these states of India. If we start from the west, it is Gujarat, then southern part of Rajasthan, then Madhya Pradesh, almost passes entirely through Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal. And if we see in the northeast, these two states are covered, Tripura and Mizoram. So generally this question is asked in the exam, that Tropic of Cancer either passes through which of the states, or ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन से स्टेट से नहीं पास करती है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. लाइक दिस डज नॉट पासिस थ्रू यूपी, ऑल्दो यूपी का ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट ये यूपी से नहीं पास करती है, ना ही बिहार से पास करती है, ना ही उड़ीसा से पास करती है. तो आई थिंक otherwise there will not be any confusion, but the confusing states can be उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा. बाकी तो जो है इनसे पास कर ही रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. देयर इज ए स्मॉल एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. दिस इज मित्र. सो मी फॉर मिजोरम एंड त्र फॉर त्रिपुरा. ओके, सो आप इस तरीके से सिंपल एक्रोनिम्स बना सकते हैं याद रखने के लिए. आई हैव फाइंड आउट दिस इंटरेस्टिंग. Okay, so I think we have discussed plenty of things in this map, so please proceed. Next is size. So after location we come to the size, and there are some facts which we should remember. These facts are useful from the perspective of prelims as well as mains. So जो mainland का जो area है, यानी कि not including the आपका अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, so that is comes out to be, sorry here is a mistake, this should be million. So this is 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो एरिया है वो लगभग 32 लाख है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई फॉरगॉट टू राइट मिलियन वर्ड हियर. सो दिस इज लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, एंड इट कम्स आउट टू बी 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया. सो हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 2.4% जो है वो इंडियन लैंड मास है वो कवर करता है. But if we see the population of the world, this is and the population of India, so it comes out nearly to be 16-17%. तो जो विश्व की जो 1/6 जो आबादी है, that is living in India, but the area is only 2.4%. So you can see the change. And another important aspect is that overall world का जो water resources है, that is just 4% in India. This is another fact which is not given in this NCERT, but I found this can be useful, so you can write in your mains exam as well, कि जो वर्ल्ड के जो टोटल वाटर रिसोर्सेज है उसका सिर्फ 4% इंडिया में है, ऑलमोस्ट 4%, बट द पॉपुलेशन विच इज रिलाइंग ऑन दिस वाटर इज अराउंड 16-17%. सो द डिसप्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज क्लियरली विजिबल हियर. ओके, नेक्स्ट इज द लैंड बाउंड्री. सो पाकिस्तान से स्टार्ट होते हुए फ्रॉम द वेस्ट, देन अफगानिस्तान, ऑन द नॉर्थ इट इज चाइना, नेपाल, भूटान, एंड ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड म्यांमार, एंड द नॉर्थ ईस्ट का जो साउथ वाला पोर्शन है देयर इज बांग्लादेश. सो द टोटल लैंड बाउंड्री कम्स आउट टू बी 15,200 किलोमीटर्स. तो जनरली जब हम लाइक इंडियाज नेबर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं या फिर नेबरहुड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को जब हम आंसर लिखते हैं मेंस में, तो वी शुड मेंशन दिस फिगर की इंडिया की जो लैंड बाउंड्री या जो लैंड बॉर्डर्स है दे आर 15,200 किलोमीटर्स. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, तो जो इंडिया का जो नीचे का जो सदर्न पार्ट जो है उसकी जो कोस्ट लाइन है उसकी जो टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दैट कम्स आउट टू बी 7,516 किलोमीटर्स. सो जनरली वी कैन रिमेंबर द फिगर ऑफ 7,500
It is not compulsory that we remember exactly 7516. We can write 7,500 किलोमीटर जो है वो इंडिया की कोस्ट लाइन है, और अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो कोस्ट लाइन है उसको हटा दें तो दिस जनरली कम्स आउट टू बी 6000 स्क्वायर किलोमीटर। तो हम ये भी याद रख सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फिगर्स, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। सो डोंट थिंक दैट we can escape them. It is not possible. Okay, then there is an interesting fact. So as I discussed in the previous slide also, कि जो latitudinal and longitudinal extent है इंडिया का जो mainland है, that is naturally comes out to be about 30 degree. I told it 29 degree. You can also remember 30 degree because जो ऑलमोस्ट है वो 30 डिग्री है। सो डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो जो हमें नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, जबकि जो ईस्ट वेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो हमें इतना ज़्यादा नहीं फील होता है। सो व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? सो वन रीज़न फॉर दिस and that is very important, the most important reason is that suppose this is the 0 degree equator, okay, एंड यहाँ से लगभग जो 8 डिग्री शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो 23 डिग्री आ जाता है, और फिर यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री नॉर्थ आ जाता है। तो एज वी मूव फ्रॉम 0 to 90 इन द नदर्न हेमिस्फीयर, तो आपका सपोज दिस इज द ग्लोब, आई विल एक्सप्लेन यू इन बिट डिटेल। सपोज दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, तो आप यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, लाइक जो अर्थ का जो डायमीटर है, इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ओके। बट एज वी मूव क्लोजर टू द पोल, तो यहाँ पे जो अगर हम पोल के पास में आ जाएंगे तो एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को ही 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो अर्थ का जो लाइक हेमिस्फीयर है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो जो आपका डिस्टेंस है, जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस, वो जनरली कम होता जाता है। आप ऐसा देख सकते हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखें तो सपोज एक वाटरमेलन लेते हैं, यानी कि एक तरबूज, और उसको वर्टिकली काटना शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो बीच का जो पोर्शन होगा वहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा विड्थ होगी, और जो कॉर्नर्स होंगे वो एकदम शार्प होते हैं, यानी कि वहाँ तक जाते जाते जो उनके बीच की विड्थ है वो 0 हो जाती है। तो दैट इज़ द ओनली रीजन कि ऑल्दो दे आर लॉन्गिट्यूड वाइज जो उनका डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स के बीच का ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, बट जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर कम है। अभी अगले वाली मैप में हम देखेंगे कि जो राजस्थान जो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ और जो ईस्ट वेस्ट का जो एक्सपेंशन है उसका एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स हैं। तो हम देखेंगे देयर इज ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ 300 किलोमीटर, जबकि लॉन्गिट्यूड्स में देयर इज नो डिफरेंस। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट वी शुड रिमेंबर। आई थिंक दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट बुक, सो आई थॉट आई मस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल, ओके। देन फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच में देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर्स, एंड दिस हैपन्स बिकॉज 0 डिग्री जो ग्रीनविच होती है वहाँ पे हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो 15-15 डिग्री के जो लेटीट्यूड्स हैं उसके बीच में देयर कम्स आउट टू बी अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। तो अगर हम 0 और 15 डिग्री के बीच में देखेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। तो इसी तरीके से जो इंडिया है उसका ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 30 डिग्री एक्सपेंशन है, तो देयर इज अ लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो सन राइजेस फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जो अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे जो है सन राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, और टिल द टाइम सन अराइजेस इन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन गुजरात, so there is a lag of almost 2 hours, and similar is the case for sunset also. So sun sets 2 hours prior to a location in Gujarat then in Arunachal Pradesh, okay. So I hope this point is also clear, and because we have only one standard time for the India, that is GMT, like जो Greenwich का जो मेन टाइम है उससे +530। सो अगर 0 डिग्री ग्रीनविच होता है तो हमारे जो इंडिया में होता है उस टाइम पे प्लस 5.5 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसके हिसाब से दिस कम्स आउट टू बी 82 डिग्री एंड 30 मिनट। सो दिस 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो है, यानी कि जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है उसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, एंड दिस ऑलमोस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया इफ वी सी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके। So this is 82 degree and half, and it passes nearly through the मिर्जापुर in उत्तर प्रदेश। उसके अलावा भी different cities हैं
along this length, but the most prominent city along this line exactly जो है वो मिर्जापुर से पास करती है, and this is taken as the standard time for the whole of the country. Okay, there is one more important point here only कि there is a debate कि क्या जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए. One is for the mainland India and another can be a स्टैंडर्ड टाइम फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिकॉज अभी जो सिर्फ एक टाइम है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, उसकी वजह से इट इज सेड और ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह जो है उनके टाइमिंग्स में बहुत सारा डिफरेंसेज आ जाता है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो टू अकोमोडेट दैट थिंग दिस कैन बी कंसिडर्ड. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, यानी कि अलग अलग एक ही देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम्स. तो सबसे ज़्यादा कौन से देश में ऐसा, आप यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो दैट, अदरवाइज आई विल बी answering that in the next video. Okay, so that is the homework for you. And the another important point with respect to its size is that कि जो latitudinal extent है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है, that is around 30 degree. So it influences the duration of day and night as one moves from south to north. तो हम देखते हैं कि इक्वेटर पे जो जनरली है वो सन की मैक्सिमम प्रेजेंस रहती है. तो जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते जाते हैं, जो दिन और रात की जो लंबाई है वो छोटी होती जाती है. एंड वी सी कि अगर हम जब तक पोल तक पहुंचते हैं, यानी कि 90 डिग्री तक पहुंचते हैं, तो जब सन नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो जो नॉर्थ पोल है उस पर 6 महीने लगातार दिन होता है, यानी कि वहां पर रात नहीं होती है. और जब सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो जो साउथ पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो है वो लगातार 6 महीने तक दिन होता है और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें रात होती है. तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती है. यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कंजेशन हो गया, सो आई टेल यू हियर. सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज लाइन ऑफ कैंसर एंड समवेयर डाउन द लाइन देयर इज इक्वेटर. तो फ्रॉम इक्वेटर यानी 0 डिग्री नॉर्थ टू 23.5, ये वाला जो जितना भी इसमें सिटीज या जो भी पार्ट कवर होता है, दिस एंटायर पार्ट. ओके, तो इसमें अगर कोई भी सिटी एग्जिस्ट करेगी तो साल में कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जहां पे जो सन की रेज हैं वो पैरेलल गिर रही होगी. सपोज वी कंसिडर हैदराबाद हियर. सो हैदराबाद जो है दिस इज सपोज अराउंड 18 डिग्री लेटीट्यूड. ओके, सो अगर हैदराबाद को हम मान लेते हैं 18 डिग्री, आई डू नॉट exactly remember or I do not exactly know, so please pardon me for that. हम just example के लिए ले लेते हैं 18 डिग्री. तो जब सन जो है वो 0 डिग्री से 18 डिग्री पे मूव करेगा, क्योंकि बिकॉज उसको 23.5 तक जाना है, तो जब वो 18 डिग्री वाली लाइन पे होगा तो जो हैदराबाद है उसमें जो दिन होगा उस टाइम पे जो है वो सन एकदम उसके वर्टिकली होगा. यानी कि जब हम देखते हैं तो अगर हैदराबाद में कोई भी इंसान है तो वहां पे जो सन की जो रेज है वो उस पर्टिकुलर दिन पे एकदम पैरेलल गिरेगी. ओके, सो यहाँ से एक जनरली क्वेश्चन बन जाता है. 4 सिटीज के नाम दे देते हैं आपको और ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे साल के किसी भी दिन सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं गिरेगी. तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. देखने से बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है लेकिन कंसेप्चुअली समझने पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. जो भी आपके सिटीज हैं दोज आर लाइंग नॉर्थ टू द 23.5, that is Tropic of Cancer, whether it is चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान की सिटीज लाइक जयपुर, और उत्तर प्रदेश की कोई भी सिटी है कानपुर, इलाहाबाद, वॉटेवर, और जो नॉर्थ ईस्ट की भी जो कैपिटल्स है लाइक गुवाहाटी और डिस्पुर, और जम्मू कश्मीर का भी कोई भी सिटी है. तो अगर इनमें से कोई भी नाम होता है सो दैट विल बी द आंसर, बिकॉज ये जो सिटीज होंगी इनमें कोई भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब सन की जो रेज है वो दे विल बी फॉलिंग परपेंडिकुलरली, यानी कि डायरेक्टली जो है वर्टिकली फॉल कर रही होगी. ओके, सो दैट इज लाइक यूपीएससी यहाँ पे कई बार क्वेश्चन फॉर्म कर लेती है. दैट वाज आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू. अदरवाइज वी कैन सी जो ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंशन है दैट इज अराउंड 2933 किलोमीटर्स, while the north to south expansion is 3214 kilometers. So there is almost a difference of 300 kilometers. And why this difference is there, I have already explained. We can see from here कि जो दो longitudes हैं उनके बीच का यहाँ का जो difference है और यहाँ का जो difference है, generally it gets reduced, and that is the only reason for
दिस डिफरेंस। ओके, जनरली आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, जो साउथ के जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे और जो नॉर्थ के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें जो उनकी विड्थ है वो कम होती जाती है। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन, सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी नहीं क्लियर है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। ओके, otherwise let's have a look at the neighbors of India in this map only. So we know that on the western side there is Pakistan, on the northern side there is a small border touching Afghanistan, so this is Afghanistan border. Uske baad mein this is China, this is Nepal, this is Bhutan, and here it is Myanmar, and next is Bangladesh. So these are our neighboring countries, and this total land border comes out to be 15,200 kilometers. So you should remember this figure, 15,200 kilometers. And the total maritime border including the Andaman Nicobar and the Lakshadweep Island, this comes out to be nearly 7,500. So we see कि जो इंडिया का जो मैरीटाइम बॉर्डर है उससे लैंड बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट दो गुना है, 7500 से 15,000। ओके, सो आई थिंक इस तरीके से रिलेशंस बना के हम और इसको याद रख सकते हैं। एंड देन दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, ओके, सो दिस इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स और 82.5 डिग्री, और दिस पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज जो है वो दे विल लाई नियर टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, so I think this is what I had to explain in this map, and we can move further. So I have thought that we will be including the UPSC questions as well, mainly the prelims questions which have been asked in the exam, so that we can prepare ourselves accordingly. Okay, so this is the question which was asked in UPSC prelims 2015, and this is a very simple question, but still many of the people got confused. So the question is, which of the following pairs of the states of India indicates the easternmost and westernmost states? So as we have already discussed in the map, it should be Arunachal Pradesh and Gujarat, because Gujarat is the westernmost part of India, and Arunachal forms the easternmost. Okay, so the same question may be asked, which of the following pairs of the states indicates the states where the sunrise first and last. Okay, so Arunachal Pradesh जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, and गुजरात जहाँ पे सबसे लास्ट में सनराइज होता है. So similar question can be asked. Okay, I will be trying to include more and more questions from the past previous year question papers, so I think that will be helpful. If you like this, that if you want me to include more and more questions, please write it in the comment section. Now we will see India's location with respect to the world. ओके, सो जो विश्व का जो मानचित्र है उसमें जो भारत की है वो क्या इंपॉर्टेंस है. सो इंडियन लैंड मास जो है, इट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. तो अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इंडियन लैंड मास जो है उसके एक तरफ जो है वो पूरा वेस्ट एशिया है, यानी कि जो गल्फ रीजन्स, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, एंड उसके जो ईस्ट की तरफ जो है वो है ईस्ट एशिया, और यू कैन कॉल साउथ ईस्ट एशिया. तो जहाँ पे लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, these countries are there. Then there is Indonesia. So this is like a central position. Okay, then the trans-Indian Ocean routes, which we will see in the next slide, which connects the countries of Europe in the west and countries of East Asia, provides a strategic central location to India. तो अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है दैट इज कुछ इस तरीके की है, तो इधर भी जो है वो अरेबियन सी है, इधर जो है वो बे ऑफ बंगाल है, और जो नीचे की तरफ है वो इंडियन ओशन है. तो इसकी वजह से जो इंडिया की जो लोकेशन होती है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो भी लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो रूट्स हैं वो दे ऑल पासिस थ्रू इंडिया. जैसे मुंबई जो है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स इवन इन द वर्ल्ड. तो बॉम्बे जो है वहाँ से बहुत सारे रूट्स जो हैं कनेक्ट होते हैं, वेदर इट इज़ टू अफ्रीकन कंट्रीज़ और टू द यूरोपियन कंट्रीज़. और इधर जो ईस्ट में लाइक हमारा जो उड़ीसा में जो पोर्ट है, या फिर जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, सो द पोर्ट ऑफ उड़ीसा इज पारादीप. सो दीज पोर्ट्स आर ऑल्सो very busy, and they are like lying on the
transit routes. Okay, even if you have to go to China. So I think this part is clear. And then the Deccan Peninsula, the southern peninsula, this protrudes into the Indian Ocean. We know कि Indian Ocean में जो है वो इसका expansion है, and thus helping India to establish close contacts with West Asia. West Asia we have already discussed, the countries including Saudi Arabia, Iraq, Iran, Africa, entire African continent and Europe from the western coast. तो जो भी इंडिया का पूरा वेस्ट कोस्ट है, उसकी वजह से हम जो वेस्ट एशियन, अफ्रीका या जो यूरोपियन कंट्रीज है उनसे काफ़ी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, और जो ईस्टर्न कोस्ट है उसकी वजह से हमने साउथ ईस्ट एशिया और जो ईस्ट एशिया है उसके साथ वी हैव एस्टेब्लिश्ड वेरी गुड लिंक्स. ओके, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैरीटाइम कनेक्टिविटी, यानी कि समुद्र के रास्ते जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है. उसके बाद में द नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन. तो जो इंडिया की जितनी लॉन्ग बाउंड्री है दैट इज अराउंड 7500 किलोमीटर, लगभग 7500 किलोमीटर की लैंड मैरीटाइम बाउंड्री है. तो किसी भी और दूसरी कंट्री की इतनी बाउंड्री इंडियन ओशन में नहीं है, यानी कि हिंद महासागर में. सो दैट इज द रीजन दैट इंडियन ओशन जो एक पूरा ओशन है दैट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिया. बाकी आप देखेंगे कोई भी जो महासागर है या जो ओशन है दे आर नॉट नेम्ड आफ्टर एनी कंट्री. It is only the Indian Ocean, so which shows the significance of location of India. And India's contacts with the world, they are centuries old. यानी कि जो इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं बाकी कंट्रीज से वो सदियों पुराने हैं. तो हम जैसे प्राचीन टाइम में जो सिल्क रूट जो होता था, हम देख सकते हैं कि उसके थ्रू जो लाइक नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स हैं माउंटेन्स के थ्रू वेस्ट एशिया से, यूरोप से और लाइक चाइना से जो हैं इंडिया के अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं. और जब हम पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जैसे जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है या जो मिस्र की सिविलाइजेशन है वहाँ के सिक्कों की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में मिलती है. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के कॉन्टेक्ट्स हैं वो सदियों पुराने हैं. तो जो लैंड वाले कॉन्टेक्ट्स हैं जो लाइक मैरीटाइम जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा पुराने हैं. मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स यानी समुद्र के रास्ते से. तो जो समुद्र के रास्ते जो हैं वो बाद में खोजे गए थे, लेकिन जो लैंड के थ्रू जो रास्ते हैं लाइक सिल्क रूट वगैरह जो है दे आर सेंचुरीज ओल्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड. सो दिस इज द मैप आई वाज टॉकिंग अबाउट. आप देख सकते हैं मुंबई जो है लाइक दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट लोकेशन. तो यहाँ से जो है वो यूरोप की तरफ भी सारे रूट्स जाते हैं, सुएज कैनाल के थ्रू जाते हैं, और जो अफ्रीका की सारी कंट्रीज है वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. देन इवन इट गोज टू चाइना एंड ऑल दीज कंट्रीज. ओके, सो मुंबई इंपॉर्टेंट है. चेन्नई कोस्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इंडिया की जो है वो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन में, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा देर आर टू मोर पॉइंट्स विच I would like to discuss. One is that the Andaman and the Nicobar Islands. तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो लाइक इंडिया का जो मेनलैंड है उससे कितने किलोमीटर दूर है ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए. तो you just Google it out and write it in the comment section. I will not tell the distance from India of the Andaman and Nicobar Island. And then there is an channel. Okay, तो उसको हम जनरली कहते हैं 10 डिग्री चैनल. ओके, 10 डिग्री का मतलब है कि जो 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पास करती है. ओके, तो उस वाली जो लाइन है उसको 10 डिग्री चैनल कहेंगे. तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो 10 डिग्री चैनल है वो कौन कौन सी दो चीज़ों को सेपरेट करता है. तो बेसिकली जो अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स है उनको सेपरेट करता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइलैंड्स के नाम बताने हैं. दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इंडिया का जो श्रीलंका से जो एक्सपेंशन है, in the previous slide where we discussed about the neighbors of India, I forgot to mention about Sri Lanka. So Sri Lanka जो है that is having a close link with India. और जो इसका इंडिया के साथ जो कनेक्ट होने का जो तरीका है ये है जो आपका है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो है वो आपका पाक बे यानी कि पाक खाड़ी. तो PALK पाक. ओके, सो दिस इज पाक बे एंड पाक स्ट्रेट के थ्रू जो है वो इंडिया और श्रीलंका आपस में कनेक्टेड है. सो दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार. ओके, सो जनरली इट कैन बी आस्क्ड कि पाक स्ट्रेट और जो मन्नार गल्फ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं. तो देन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, MUNNAR.
sorry, MANNAR. So Gulf of Mannar and Pak Strait, they connects India and Sri Lanka. So this is an easy thing, but it can be asked in the exam. Okay, so I hope you liked the video. I hope the way of presentation is good, and if you have any kind of suggestions, you please write that in the comment section, and then I will request you to like this video, share it with your friends, and subscribe to the La Education channel. Okay, so that you can get more and more awesome video. And last but not the least, that this series has been started because you people have demanded it. It was the demand of the aspirants that sir, please conduct like Indian geography. So I have started this series, and I hope you will be giving good response to it so that I can continue with this. Okay, thank you.